1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, मैथ्यू 13 चैप्टर 44 वर्स से 14 चैप्टर 1 वर्स से 12 वर्स तक, जेनेसिस 46 चैप्टर 47 चैप्टर 48 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 44 वचन से शुरू करेंगे। 14 अध्याय में जाकर 1 वचन से 12 वचन तक पढ़ते जाएंगे। उत्पत्ति 46 अध्याय 47 अध्याय 48 अध्याय हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के आत्मा, इन वचन को पिता हमारे शरीर, प्राण, आत्मा के लिए लाभदायी वचन है खुदा। ये वचन के अंदर के गहरे भेद खुदा हमारे आत्मा में परमेश्वर के काम करने में हमें आसान कर देता है। मेरे खुदा परमेश्वर, हमें कोई बात छिपा मत हमसे पिता परमेश्वर, किसी भी ग्रहण करने योग्य बात परमेश्वर दूर मत रख। ये वचन का पिता मानना जो परमेश्वर हमारे शरीर को पिता लाभदायी है, हमारे प्राण के लिए लाभदायी है, हमारे आत्मा के लिए लाभदायी है, आज हमारे अंदर उतर कर आने दे और इसकी फसल तेरे राज्य में तेरी महिमा के लिए आने दे। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। हम पढ़ेंगे मैथ्यू 13 चैप्टर मैथ्यू 13 चैप्टर 44 वर्स से 14 चैप्टर 1 वर्स से 12 वर्स तक हम शुरू करेंगे। 44 वर्स से, किंग्स जेम्स वर्शन में से। अगेन द किंगडम ऑफ हेवन इज लाइक unto treasure hid in a field, the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field. Again the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pearls, who when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had, and bought it. Again the kingdom of heaven is like unto a net that was cast into the sea, and gathered of every kind, which when it was full, they drew to shore, and sat down, and gathered the good into vessels, but cast the bad away. So shall it be at the end of the world. The angels shall come forth and sever the wicked from among the just, and shall cast them into the furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. Jesus saith unto them, Have ye understood all these things? They say unto him, Yea, Lord. Then said he unto them, Therefore every scribe which is instructed unto the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which bringeth forth out of his treasure things new and old. And it came to pass that when Jesus had finished these parables, he departed thence, and when he was come into his own country, he taught them in their synagogue, insomuch that they were astonished, and said, Whence hath this man this wisdom and these mighty works? Is not this the carpenter's son? Is not his mother called Mary, and his brethren James and Joseph and Simon and Judas, and his sisters, are they not all with us? Whence then hath this man all these things? And they were offended in him. But Jesus said unto them, A prophet is not without honor, save in his own country and in his own house. And he did not many mighty works there because of their unbelief. Chapter 14, John the Baptist beheaded, 5,000 fed, etc. फर्स्ट वर्स से 12 वर्स तक पढ़ेंगे हम। At that time Herod the Tetrarch heard of the fame of Jesus, and said unto his servants, This is John the Baptist, he is risen from the dead, therefore mighty works do shew for themselves in him. For Herod had laid
hold on John and bound him and put him in prison for Herodias' sake, his brother Philip's wife. For John said unto him, It is not lawful for thee to have her. And when he would have put him to death, he feared the multitude, because they counted him as a prophet. But when Herod's birthday was kept, the daughter of Herodias danced before them and pleased Herod, whereupon he promised with an oath to give her whatsoever she would ask. And she, being before instructed of her mother, said, Give me here John Baptist's head in a charger. And the king was sorry. Nevertheless, for the oath's sake and them which sat with him at meat, he commanded it to be given her. And he sent and beheaded John in the prison. And his head was brought in a charger and given to the damsel, and she brought it to her mother. And his disciples came and took up the body and buried it, and went and told Jesus. When Jesus heard of it, he departed thence by ship into a desert place apart, and when the people had heard thereof, they followed him on foot out of the cities. And Jesus went forth and saw a great multitude, and was moved with compassion toward them, and he healed their sick. And when it was evening, his disciples, हमने 12 वचन तक ही पढ़ना है, and his disciples came and took up the body and buried it, and went and told Jesus. यहाँ तक ही पढ़ना है, हमने एक वचन आगे चले गए थे, 12 और 13 आधा पढ़ चुके थे. ओके, एक दो वचन आगे गए थे, 13, 14. ओके, नो प्रॉब्लम. हमको सिर्फ 12 वचन तक ही पढ़ना था, हम पढ़ चुके. हम हिंदी BSI बाइबल में पढ़ेंगे 13 अध्याय, उसका 44 वचन से शुरू करेंगे. 14 अध्याय के 1 से 12 वचन तक आगे पढ़ते हुए आएंगे. ओके, BSI बाइबल में से पढ़ेंगे 44 वचन से 13 अध्याय. मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 44 वचन से 14 वचन के 1 से 12 वचन तक पढ़ते जाएंगे. थैंक यू जीसस. BSI बाइबल में से पढ़ रहे हैं हम. छिपे हुए खजाने का दृष्टांत. स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया. अनमोल मोती का दृष्टांत. फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था. जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया. जाल का दृष्टांत. फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है, जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया. और जब जाल भर गया, तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी. जगत के अंत में ऐसा ही होगा. स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा. पुरानी और नई शिक्षा का महत्व. 51 वचन से आगे. क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उससे कहा, हाँ. उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है, उस गृहस्थ के समान है, जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. यहाँ पे एक खास बात है, देखिए. इसलिए हर एक शास्त्री, ओके, हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना, ओके, यानी इस्राएल में से निकलकर अब वो फरीसी और सदूसियों में नहीं रहा, अब वो परमेश्वर के राज्य में आ चुका. तो फिर वो कैसे परमेश्वर के राज्य में आता है? यूहन्ना बपतिस्मा ने उनको पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा दिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में. तब उनका बपतिस्मा हो जाता था
और फिर वहाँ से लेकर उनके ऊपर ये सिखाने वाला स्वर्ग का राज्य शुरू हो जाता था। ओके, तो वो इसराइलियों में से निकल कर आते हैं, इसके लिए उनके पास इसराइलियों के भी रीतियाँ हैं। ओके, वो तरीके हैं, क्या क्या है उनके विषय में, और फिर उनके पास अभी स्वर्ग के राज्य के प्रकाशन भी है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पे लिखा है, उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। नासरत में यीशु का अनादर। 53 वचन से आगे, जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ के काम कहाँ से मिले? क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहिनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह सब कहाँ से मिला? इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। 14 वचन से आगे देखो, परमेश्वर अभी भी यहाँ पे यही बता रहा है, तुम्हारा प्रॉब्लम एक ही है, अविश्वास। ओके, मैंने जितनी बार यीशु मसीह को गलती बताते हुए देखा है, तो वो जब चमत्कार नहीं होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं चेले, तो उनको वो ये एक ही बात को ज्यादा बता देता है, अविश्वास। ओके, तुम्हारे अविश्वास के कारण। ठीक है, तो हम सब चेले हैं परमेश्वर के, तो हमने ये बात को बहुत ज्यादा अपने दिमाग पर लेना है कि अविश्वास हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या। 14 अध्याय 1 वचन से 12 वचन तक। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वह मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है। इसलिए वह उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता मानते थे। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वह अपनी माता के उस काने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दे। राजा दुखी हुआ, पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए, और उसने जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया। बहुत ध्यान रखना है अभी इस समय से लेकर। ओके, कुछ भी जब आप बोलते हो तो आप उसमें फंस जाते हो। किसी को वायदा मत करो जब आपको मालूम नहीं है वो क्या मांगने वाला है। ओके, अगर वो मांगने के पहले आपसे कोई वायदा लेता है तो आप हाँ नहीं करना है जब तक आपको पता न चले क्या मांग रहा है वो। ओके, आप ध्यान रखिए इस बात को। राजा दुखी हुआ, पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए, और उसने जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया, और इसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, जिसे वह अपनी माँ के पास ले गई। तब यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इन वचनों के भेद रहस्य हमको दे और इनमें हमें फिट एंड फिक्स कर। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।